to video lecture series on RCC, Reinforcement Concrete Design. In this lecture, we will see what is effective length or what is effective span and clear span. Okay, so we will start with a simply supported beam. So for effective span for simply supported beam or slab, right? So generally what we have done in our load bearing structures, there was wall, this portion is wall, okay, this portion is wall, and over that there was a slab. There was no beams in load bearing structure, whereas in case of frame structures there is beam and column like this, right? So this portion is known as beam, whereas this portion is known as columns. Vertical portions is known as columns. Okay, so what is clear span now? Clear span means face to face distance, means from this face to this face distance is known as clear span. Okay. This is known as clear span. Now what about effective span? So for effective span there are different clause given, but first we will understand what is simply supported beam. Simply supported beam means, see, here is the example for a simply supported beam in which this is a support, right? This is a support, and over which, again this one is support, over which a beam is rested, and it is simply rested over the support, and therefore this is known as simply support. Similarly, in case of load bearing structures, these walls are constructed first and over that the slab is simply rested, and therefore it is known as simply supported structure. Also, there is no connection between slab and walls, means this joint is not monolithical joint, it is a non-monolithical joint, and therefore it is known as simply supported beam, right? So in simply supported beam, what is clear span? Clear span means inner face to inner face distance जो भी रहेगा, that is known as clear span. What about effective span? तो generally हमें पता है कि effective span क्या रहता है, center to center of supports, right? यानी अगर हमें यहाँ पे effective span दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये center to ये center, इसे हम कहेंगे effective span. It is correct, but IS 456 has given some specifications, and we have to follow those specifications while calculating effective span from a clear span, right? तो clear span तो वही रहेगा जो है, लेकिन effective span जो है हमारा वो condition के हिसाब से vary होगा. तो अभी हम देखते हैं कि effective span के लिए क्या दिया है. Effective span of a member that is not built integrally, see this is very important, that is not built integrally means there is no connection between support and slab or support and beam. This can be treated as slab as well as beam. Okay, with support shall be taken as clear span plus effective depth of slab or beam. This is either slab or beam, right? And what about effective depth? This is effective depth of slab. Now again we will make it clear what is effective depth. For example, if this is a beam, this is reinforcement, right? So this is overall depth, upper face to below face, and this is known as effective depth, right? So here effective depth is given, not overall depth is given. So we have to keep in mind that effective depth is given, right? So what is the clause? Clause says that effective depth, clause says that effective span means LE, is equals to clear span means LC. Okay, effective depth is equals to LE is equals to LC plus effective depth of slab beam plus effective depth of slab or beam, that is small d, or LE is equals to LC plus or it is given center to center of support, whichever is less, right? So clear span plus effective depth of slab or beam or center to center of support. So center of center support कैसे calculate करेंगे? If this support is having width B, if this support, or let us say
WB, right? This is having BW, width of support. For example, अगर ये BW है, ये BW है, तो ये कितना हो जाएगा? Half of BW. Okay, this is also half of BW, right? तो अगर हमें इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? LC प्लस ये साइड से हाफ ऑफ सपोर्ट और ये साइड से हाफ ऑफ सपोर्ट. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं BW/2 प्लस BW/2. इसे हम ऐसा लिख सकते हैं दैट क्लियर स्पैन इज इक्वल्स टू BW प्लस LC और LC प्लस BW, बिकॉज हाफ BW क्या हो जाएगा? BW यानी विड्थ ऑफ सपोर्ट, राइट? सो हमारे पास टू क्लॉजेस थे. फर्स्ट क्लॉज कहता है कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम. और दूसरा क्लॉज क्या कहता है? क्लियर स्पैन प्लस half the width from this side and half the width from another side. Now it might happen कि ये साइड का सपोर्ट जो है वो अलग width का है और ये साइड का सपोर्ट अलग width का है. तो वो केस में ये फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूले अप्लीकेबल नहीं रहेंगे. आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, BW1 एंड BW2, अगर width ऑफ सपोर्ट दोनों तरफ अलग अलग है. तो अगर सेम है तो डायरेक्टली क्लियर स्पैन प्लस BW, क्योंकि हाफ ये साइड करेगा और हाफ वो साइड करेगा, राइट? सो होप यू हैव अंडरस्टूड. अब ये दोनों में से कौन सा लेना है? पहला कौन सा था हमारा? LE इज इक्वल्स टू LC प्लस D, और दूसरा था LE इज इक्वल्स टू LC प्लस BW, राइट? ये दो थे. अब ये दोनों में से कौन सा कंसीडर करने का? तो विच एवर इज लेसर, ये दोनों में से जो कम आएगा वो कंसीडर करना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो है वो है 230, और क्लियर स्पैन जो है हमारा ये है 5000 mm. ऑल दिस थिंग्स आर इन mm. तो अभी इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे LE इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन कितना है? 5000 प्लस 230, और LE इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 300. तो अभी हमारे पास दो मिलेंगे, उसमें से लेसर कौन सा रहेगा? ये, यानी हमारा इफेक्टिव स्पैन फाइनल कौन सा हो जाएगा? 5230 mm, because another one is 5300. So I think कि आपको ये अभी समझ गया है. अब ये तो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम. बीम के लिए हम, फॉर कंटिन्यूस बीम के लिए हम इफेक्टिव स्पैन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कंडीशन लेंगे कि विड्थ ऑफ सपोर्ट चेक करेंगे. हम इसे कहते हैं हम विड्थ ऑफ सपोर्ट. ओके, सो ये हो गया विड्थ ऑफ सपोर्ट, या इसे हम कहेंगे विड्थ ऑफ सपोर्ट यानी विड्थ ऑफ कॉलम. तो ये सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते कि ये कितनी है. फॉर एग्जांपल विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है. फॉर इंस्टेंट मुझे समझने दीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब विड्थ ऑफ सपोर्ट 4 सेंटीमीटर है और इसे हम ऐसा कंसिडर करते हैं क्लियर स्पैन यानी LC को ये 60 सेंटीमीटर है. फाइन, इसे हम 60 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं. ओके, अब आईएस कोड में क्या क्लॉज दिया है? आईएस कोड में क्लॉज दिया है कि BW यानी विड्थ ऑफ सपोर्ट, इफ BW इज लेस देन LC डिवाइडेड बाय 12, इफ BW इज लेस देन LC डिवाइडेड बाय 12, इफेक्टिव लेंथ जो आपको कैलकुलेट करनी है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे कैलकुलेट करनी है. यानी ये B है ना, जो A में दिया है अकॉर्डिंग टू A. अकॉर्डिंग टू A में क्या दिया है? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. ये तीनों में से जो कम होगा या ये दोनों में से जो कम होगा वो आपको लेना है. तो अगर BW इज लेस देन LC बाय 12 तो वो केस में हमें कौन सा यूज करना है? फर्स्ट कंडीशन यूज करनी है. अभी हम हमारे केस में करके देखते हैं. BW कितना है? 4 सेंटीमीटर. LC बाय 12 कितना है? LC कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी कितना आ जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर, राइट? सो BW इज less than 5 centimeter. BW is less than 5 centimeter, and therefore we can say we have to calculate effective span for this continuous beam using clause A. इतना तो आप कंफर्म हो गए. अगर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 4 नहीं है 6 सेंटीमीटर है, अब क्या होगा? अब फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं. क्लॉज क्या कहता है? क्लॉज कहता है कि आपको BW को और
LC बाय 12 को कंपेयर करना है। अब BW कितना है हमारे केस में 6 सेंटीमीटर है, LC बाय 12 कितना है, LC कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब BW 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, BW इज ग्रेटर देन LC बाय 12 एंड देयरफॉर हमें उसके लिए ये जो नया क्लॉज दिया है वो क्लॉज का यूज करना है। अभी हम नया क्लॉज देखते हैं। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा BW जो है वो LC बाय 12 से ज्यादा है, राइट। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसा करना है। तो यहां पे दिया है फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज कंटिन्यूअस। तो यहां पे दो चीज के लिए दिया है, एंड स्पैन और इंटरमीडिएट स्पैन, ठीक है। सो फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट स्पैन, इफेक्टिव स्पैन शैल बी क्लियर स्पैन बिटवीन सपोर्ट। काफी सिंपल दिया है। अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि BW, अगर ये BW यानी क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, राइट। BW यानी विड्थ ऑफ सपोर्ट। अगर ये LC बाय 12 से ज्यादा है वो केस में आपको ये यूज करना है। और इसमें क्या दिया है, वेरी सिंपल, L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन, दैट्स इट। कोई भी उसमें डेप्थ ऑफ स्लैब ऐड करने की जरूरत नहीं है या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा B पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम जाते हैं वही B पॉइंट में का सेकेंड, उसमें क्या दिया है, फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फ्री, वन एंड इज फ्री, यानी ये कंडीशन हम देखते हैं। वन एंड फ्री कब रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम है, अब दिस एंड इज फ्री एंड दिस एंड इज कंटिन्यूअस, राइट। सो ये अगर ऐसा स्पैन है फॉर एग्जांपल, तो वो कंडीशन के लिए दिया है इन्होंने। वो कंडीशन में क्या करना है, क्लियर स्पैन प्लस हाफ द विड्थ ऑफ डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट और क्लियर स्पैन प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है LE इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन प्लस D/2 और LE इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट मीन्स BW/2। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही BW क्यों लिया, क्योंकि अगर ये बीम है तो इधर सपोर्ट है नहीं, सिर्फ इधर ही सपोर्ट रहेगा, राइट। इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही BW/2 लिया, ठीक है। तो ये एक हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट, क्योंकि इसकी इधर सपोर्ट नहीं, इसलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट कहते हैं। सो LE इज इक्वल्स टू LC प्लस D/2 एंड LE इज इक्वल्स टू LC प्लस BW/2। ये दोनों में से जो कम रहेगा, विचएवर इज लेस, वो हमें कंसिडर करना है, राइट। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर की केस। अभी इसके पहले का जो केस हमने डिस्कस किया था, ये केस में भी ये कैंटिलीवर के जैसे दिख रहा है, राइट। ये वाला कैंटिलीवर के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये कैंटिलीवर नहीं है। कैंटिलीवर में क्या होता है कि ये जो एंड रहता है, ये एंड फिक्स्ड रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता। और जो बीम है वो बीम इधर एक्सटेंड नहीं होता, यहां पे ही कट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। जैसे छज्जा इज अ ट्रू कैंटिलीवर। अगर फॉर एग्जांपल पोर्च हम निकाल रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं पीछे के बीम्स का, हॉल के बीम्स का या जो भी बीम्स पीछे है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कैंटिलीवर, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस बीम, राइट। सो अभी हम कैंटिलीवर बीम के बारे में देखते हैं। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि ये यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके इधर कंटिन्यू नहीं रहता। तो एक एंड हमारा फ्री है, दिस इज फ्री एंड, दिस इज फिक्स एंड। और ये कंडीशन में क्या कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन अगर ये जो है इसे हम कहते हैं LC क्लियर स्पैन, तो हमारा LE जो है वो हो जाएगा LC प्लस हाफ इंटू BW, वेरी सिंपल, LC प्लस हाफ द इफेक्टिव विड्थ। और लास्ट जो है वो है फ्रेम्स। तो जनरली हमें फ्रेम्स, अभी जो फ्रेम स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें जनरली फ्रेम्स ही मिलेंगे, इसलिए वो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो फ्रेम्स के लिए उन्होंने बोला है कि जस्ट डू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये फ्रेम लेते हैं, ठीक है, ये फ्रेम लेते हैं ऐसी, तो सिंपली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी इसके सपोर्ट के सेंटर से इसके सपोर्ट के सेंटर तक डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज व्हाट नोन एज इफेक्टिव स्पैन, राइट। सो वेरी सिंपल।
So we have seen for simply supported beam, we have seen for continuous beam, we have seen for cantilever beam, and we have also seen for a frame structure, right? So this is how the effective span is calculated. So in this lecture we have seen what is clear span, what is width of support, then how to calculate effective span for different type of beams. Thank you.